Hello everyone, myself Rajni Dehman, and today we are going to discuss about the poem The Duck and the Kangaroo from class 8th. It has been written by Edward Lear. The poet name is Edward Lear. Here it is a conversation between two friends, the duck and the kangaroo as its name suggests. Let's come to the introduction part first. Two friends, the duck and the kangaroo, are about to set out on a long pleasure trip. The kangaroo, though happy to carry the duck all the way on the tip of his tail, is wary of her wet feet. What will the duck do to make the kangaroo feel comfortable over land and sea? Let us find out how they go about it. टू फ्रेंड्स हैं डक एंड द कैंगरू. वो दोनों एक लॉन्ग प्लेजर ट्रिप प्लान करते हैं. एन्जॉयमेंट ट्रिप मीन्स. और कैंगरू और डक दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी हैं. वो उसको अपनी टेल पर बैठने की परमिशन देता है, बट एट द सेम टाइम ही इज़ वरीड अबाउट हर वेट फीट. उसके गीले फीट से डरता है. एंड व्हाट विल द डक डू? तो कंफर्टेबल फील करे ताकि कैंगरू, और किस तरह से उसको कन्विंस करेगी डक कि वो मुझे ट्रिप पर ले जाए. लेट्स फाइंड आउट इन द poem. I will be bilingual to make you understand. Just like you can see, kangaroo is hopping, it's jumping, and duck is sitting at the tip of the tail of the kangaroo. Let's come to the first stanza. Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you," said the duck to the kangaroo. In this stanza, duck kangaroo को बोलती है good gracious. Good gracious means kind and humble. How kind and humble you are. How beautifully you hop. तुम कितने अच्छे से जंप करते हो. Over the fields, fields के ऊपर, and water के ऊपर. एज़ इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, कि तुम जैसे कभी नहीं रुकोगे. इतना अच्छा जंप करते हो. पर मेरी लाइफ जो है बोर है इन दिस नेस्टी पॉन्ड. नेस्टी मीन्स बैड और अनप्लेजेंट. जो बोरिंग लग रहा है उसको, बार बार वो एक ही पॉन्ड में रहकर उसमें स्विम कर कर काफ़ी बोर फील कर चुकी है अब. एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड. अब उसकी ये इच्छा होती है कि वो पूरे वर्ल्ड का टूर करे, उस पर घूमे वो. आई विश आई कुड हॉप लाइक यू. वो विश करती है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह जंप कर सकती. सेड द डक टू द कैंगरू. इसमें अगेन डक जो है कैंगरू को बोलती है. इन दिस देयर आर सम पोएटिक डिवाइसेस. द पोएट हैज़ यूज पोएटिक डिवाइसेस और लिटरली डिवाइसेस. इट मीन्स सम डिवाइसेस और टूल्स पोएट यूजेस टू मेक इट ब्यूटीफुल एंड इफेक्टिव poem. So here first of all, if we talk about rhyme scheme is A B A B C C A A. I will let you understand. A B, how it is A B. Kangaroo जो है फर्स्ट वर्ड में एक साउंड आ रही है, होप में अलग साउंड है. अगेन टू में कैंगरू से मैच कर रही है. दैट्स वाई वी हैव गिवन इट A. होप एंड स्टॉप दोनों मैच कर रहे हैं. वी हैव गिवन इट नेम B. इन तीन दोनों से डिफरेंट है pond and beyond, but both these are matching, so we have given it name CC. Again, you and kangaroo is matching with the first one, so we have given it the name AA. Let's come to the second. Please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. I would sit still and say nothing but quack. दोबारा से फिर वो उसको रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे परमिशन दे दो कि मैं आपके बैक पर बैठूं और राइड कर सकूं और हम पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाएं. मैं चुपचाप बैठूंगी, सिट क्वाइट स्टिल, ना हिलूंगी ना डुलूंगी और कुछ नहीं करूंगी, कहूंगी ओनली आई वुड से क्वैक. क्वैक मीन्स अ साउंड मेड बाय डक. नाउ हियर द पोएट हैज़ यूज A B and back and quack. Quack and back, AA rhyming scheme is matching here. Now I want to tell about alliteration. Alliteration, what is alliteration? The repetition of a consonant sound at the start of two or more words. Consonant
साउंड जब हमारी आती है किसी भी दो में एक जैसी, जैसे इसमें गुड ग्रेशियस जी जी यूज़ हुआ है, हियर इट इज़ एलिट्रेशन. इन दिस एच एच हाउ होप, एच इज़ repeating here, alliteration is here, it means. And in this sit quite still and say, s has been used, so here it is alliteration, s is repeated here. And I would like to tell you one more thing. Here it is, this sentence we will call it refrain. Refrain means the use of a musical rhyming sentence throughout the poem. आप जिस भी आप स्टेंजा में देखेंगे यू विल फाइंड दैट हमारा यही जो सेंटेंस है इट्स अगेन एंड अगेन वो यूज़ हुआ है. तो जब ये कोई एक राइमिंग सेंटेंस बार बार यूज़ होता है उसे हम कहते हैं रिफ्रेन. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ. The whole of the long day through, and we would go to the D and the Jelly Boli over the land and over the sea. Please take me on a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. हम दिन रात पूरा वर्ल्ड का चक्कर लगाएंगे, हम यहाँ घूमेंगे, over the land, over the sea. और again she is requesting कि please मुझे राइड दे दो, said the duck to the kangaroo. Again here it is refrain. And rhyming scheme is B, the last we read, it's matching with it, and C C, again here it is again different, and B B. Said the kangaroo to the duck, this requires a little reflection, perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, which is if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold and would probably give me rheumatiz, said the kangaroo. Now in this stanza, kangaroo duck से कहता है कि बाकी सब ठीक है, I will be more really very happy to be with you and I will be happy to go with you for a round. But उसके मन में एक थॉट आता है, रिफ्लेक्शन, थिंकिंग, वो सोचता है, उसको एक ऑब्जेक्शन है उससे कि अगर वो इजाज़त दे तो वो उसको बोले कि तुम्हारे जो पैर हैं वो बहुत ही गीले और ठंडे होते हैं, जिसकी वजह से आई कैन गेट रूमेटाइज, रेफर्स टू द डिजीज़ ऑफ रूमेटिज्म. इट मीन्स कोल्ड एंड कफ और फीवर उसको आ सकता है, गीले पाँव की वजह से उसको फील हो सकता है. एंड प्रोबेबली मीन्स परहैप्स, कि शायद उसके गीले और कोल्ड पैरों से उसको बुखार या वो बीमार पड़ सकता है, इसीलिए वो अभी इस स्टेंजा में राजी नहीं होता, उसको हाँ नहीं करता. हेयर राइमिंग स्कीम इज़ ए बी एंड ए, डक एंड लक आर मैचिंग, रिफ्लेक्शन एंड ऑब्जेक्शन दे आर मैचिंग, बी बी, बोल्ड एंड कॉल, सी सी, रो एंड कैंगरू, एंड डी डी. हेयर डी डी नाम दिया है बिकॉज इन तीनों से ये डिफरेंट साउंड आ रही है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा. सेड द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली एंड आई बॉट 4 pairs of worsted socks which fit my web feet neatly. उसके लिए वो क्या तैयारी करती है, वो सोचती है, जब रॉक्स पर बैठती है वो सोचती है कि उसको क्या किया जाए कि वो डक को कन्विंस कर सके और कंफर्टेबल फील करवाए. उसके लिए वो पूरी तरह से तैयारी करती है. 4 वुलन सॉक्स खरीदती है, वर्स्टेड सॉक्स खरीदती है, विच फिट माई वेब फीट नीटली, जो पूरी तरह से उसके गीले पाँव को फिट हो जाते हैं ताकि वो कैंगरू की स्किन पर टच ना हो पाए उसके गीले और ठंडे फीट. एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक, उसने एक क्लॉक ख़रीदा है, श्रग, एक वुलन, जिससे कि उनको ठंड ना लगे. एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, हर रोज़ एक सिगार स्मोक करेगी ताकि उनकी बॉडी जो है वार्म रहे. ऑल टू फॉलो माई ऑन डियर ट्रू लव ऑफ अ कैंगरू, उसका डियर फ्रेंड है कैंगरू, उसको खुश रखने के लिए वो सब कुछ करेगी जो कैंगरू बोलेगा. सेड द कैंगरू आई एम रेडी, पहले कैंगरू कन्विंस नहीं था, रेडी नहीं था, पर डक उसको मना लेती है. एंड देन
She was convinced, kangaroo was convinced and get ready to go for a round word beyond. All in the moonlight pale. But to balance me well, dear duck, sit steadily and quite at the end of my tail. अब वो रेडी हो जाता है और मूनलाइट पेल मीन्स थोड़ा डल होना, येलोइश, उसमें मूनलाइट में वो निकलने की तैयारी करते हैं। पर लास्ट मोमेंट पर वो कहता है कि मुझे अपना बैलेंस बनाने के लिए ज़रूरी है कि तुम चुपचाप बैठो और हिलो नहीं, और इसीलिए एंड क्वाइट एट दैट एंड ऑफ माई टेल, एज वी सॉ इन द पिक्चर, कि वो उसकी टेल पर चुपचाप बैठती है ताकि अपना बैलेंस कैंगरू बना सके। सो अवे दे वेंट विद अ होप एंड अ बाउंड एंड दे होप द होल वर्ल्ड 3 times राउंड एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कैंगरू। अब वो खुशी खुशी दोनों एक दूसरे की बात मानकर, डक जो प्रेपरेशंस करती है, 4 pairs ऑफ सॉक्स खरीदती है, सिगार खरीदती है एंड अ श्रग खरीदती है, उस सब की बातें मानकर फिर कैंगरू भी मान जाता है ये देखकर कि डक कितनी प्रेपरेशन कर रही है। एंड देन दे बोथ वर रियली वेरी हैप्पी। उन्होंने 3 times पूरे वर्ल्ड का राउंड लिया। नाउ alliteration I talked about here, whole word, WW has been used. Dear duck, DD is repeating here. Dear duck, here it is alliteration. So that was the poem. It was written by Edward Lear. We discussed it today. Thank you and have a nice day.